morning students, how are you all? I hope all of you are fine. Yes students, today we are going to again continue. We are going to start again same chapter, the voice of our conscience. I hope whatever I have explained you, the half of the chapter, you have understood that. Now let us know that what was going on in the previous class, what I have explained you, that the old lady, the Zuman Khala, means Zuman's Khala, went to the panchayat and she requested for the justice. Is it? At that time everyone obeyed with her and they said that okay, we will call Zuman in the panchayat, and at the fixed day the Zuman came there, and the villagers also came at the same time, and they were means वो वहाँ पे आके एकत्रित हो गए. And after that what happened, there was means the head punch said that Zuman, select one of the person whom you want in with your choice. तुम्हारी तरफ से कोई किसी को अगर आप तुम सेलेक्ट करना चाहते हो, if you want to select any one person, you can select from your side. But Zuman was confused. So what he did, he said that I will leave this on खाला. उस वक्त उसने कहा कि मैं ये अपने खाला के ऊपर छोड़ता हूँ, वो जिसको चाहती है उसको अपनी तरफ लेकर खड़ा कर सकती है. At that time Zuman's Khala said that I will make Algu to stand over from my side. तो तब जुमान की खाला ने ये कहा कि मैं अलगू को अपनी तरफ से खड़ा करती हूँ. So now let's see what happened. अब लेकिन उस वक्त जैसे ही अलगू उसके सामने खड़ा होता है, जुमान के मन में एक बात आ जाती है. What happens? In his mind one thing comes there in his conscience that Algu will never verdict, means वो कभी भी इसके खिलाफ निर्णय नहीं लेगा, ऐसा उसको लगा. So let's see what happened. Now see on the screen, the paragraph I am showing you is Algu at first hesitated and reminded the aunt that perhaps she was forgetting that Zuman was his close friend. Algu at first, सबसे पहले अलगू जब खड़ा हुआ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, हेजिटेट हो गया, और उसे बार बार एक ही चीज़ याद आ रही थी, क्या कि जुमान जो है वो उसका प्रिय मित्र है. The aunt said that she was aware of this fact, but she was also quite confident that Algu would follow the dictates of his conscience. खाला को भी ये बात पता थी कि जुमान का प्रिय मित्र है अलगू, और उन्हें ये भी विश्वास था कि अलगू कभी भी गलत का साथ नहीं देगा. तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. उनकी आत्मा उनसे एक ही बात कह रही थी, वो अपने आप पर नियंत्रण रख रही थी कि हाँ, अलगू मेरा ही साथ देगा, वो कभी गलत का साथ नहीं देगा. He will never go towards the Zuman. The case began. अब यहाँ पे जो केस था वो शुरू हो जाता है. Algu asked Zuman if he had anything to say in his defense. तभी अलगू जुमान से ये कहता है कि अगर तुम्हें अपनी तरफ से कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो. Zuman said that he was not obliged to pay her an allowance as it was not specified in the deed. Also, her property did not fetch him enough to pay her. उसी वक्त अलगू जैसे उसको जुमान को बोलता है, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो, if you want to say anything from your side, you can proceed. So at that time Zuman said that I did not want to pay her any allowance. मैं उसे कोई खर्चा पानी नहीं देना चाहता, क्योंकि मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है. अगर मैं उसे खर्चा पानी दूंगा तो फिर क्या मतलब है. तो तब वो ये बोलता है कि साथ में ये भी बोलता है, what he said that what Zuman Khan means Khala has given me, my aunt has given me the property does not fetch enough to me, means ये इतने पैसे जो प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे दी थी उससे मुझे इतने पैसे मिलने वाले नहीं है कि जितना ये खर्चा मांग रही है, मैं ऑलरेडी इन पे इतना खर्चा कर चुका हूँ. Algu being well versed in legal matters did not agree with Zuman's explanation. He questioned Zuman like a seasoned lawyer. Algu being well versed in legal matters. Algu जो था वो कानूनी तरीके से अगर इन मैटर्स के बारे में सोचता है, तो मतलब मतलब being well versed means वो इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है. तो वो क्या करता है, लीगल कानूनी तौर से जो सही होता है वो उन चीज़ों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानता है. तो वो अब अलगू जुमान की जो एक्सप्लेनेशन थी
जुमान की जो एक्सप्लेनेशन थी, यानी जो भी उसने कहा उससे वो क्या करता है, सहमत नहीं होता. He was not means he does not means he was thinking that whatever he is saying that it is a unfettered. Now he question, अब वो क्या करता है, अलगू जुमान से पूछता है like a seasoned lawyer. सीजनेड लॉयर का मतलब जैसे कि बहुत अनुभव होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव होना. एक वकील को जैसे अनुभव होता है वैसे ही अलगू ने भी इस तरीके से क्वेश्चंस उससे पूछे कि जैसे कि उसे एक्सपीरियंस है लॉयर का. जुमान वॉज अमेज्ड एंड परप्लेक्स्ड एट दिस सडन चेंज इन हिज फ्रेंड एंड स्टूड डम्फाउंडेड. अब यहाँ पे जुमान आश्चर्यचकित हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा उलझन में फंस गया कि कैसे एक मेरे मित्र में इतना बदलाव कैसे आ गया. जैसे उसने ये सारी बातें सुनी वो वहीं पर क्या हो गया, ऐसे जैसे कि कोई आश्चर्यचकित होकर वहाँ पे हक्का बक्का नहीं हो जाता, उसकी बोली उस वक्त बोल ही नहीं पाता हूँ, तो वैसे वो वहीं पर खड़ा हो गया. Now page number 52. अलगू then pronounced the verdict. अलगू ने फिर पूरी बात, जो भी निर्णय था उसने पूरी जो भी यहाँ वहाँ पे जो भी था वो सब कुछ उसने एक्सप्लेन किया. जुमान शेख, the considered opinion of the panchayat is that you can afford to pay your aunt a monthly allowance from the profit that her property fetches you. तभी जुमान शेख को आखिरी निर्णय सुनाया जाता है कि क्या, कि पंचायत ने ये निर्णय लिया कि तुम इतना महीने का खर्चा पानी को खर्चा दे सकते हो, जो प्रॉफिट यानी लाभ तुमने इनकी प्रॉपर्टी से पाया है उससे तुम इन्हें हर महीने थोड़ा बहुत दे सकते हो. इफ यू डिसाइड नॉट टू पे हर देन यू विल हैव टू रिटर्न हर प्रॉपर्टी. अगर तुम इसे खर्चा देने से मना करते हो तो फिर तुम्हें क्या करना होगा, इसकी जो आंट की जो भी मतलब जुमान की जो खाला थी उनकी जो भी संपत्ति है तुम्हें वापस लौटानी पड़ेगी. ऐसा जुमान को पंचायत के लोगों ने कहा. द वर्डिक्ट शॉक्ड जुमान. जो निर्णय लिया गया उससे जुमान को बहुत ज्यादा शॉक लगा. He could hardly believe his ears and felt that अलगू had betrayed him. अब वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो बात उसने सुनी, जो फैसला उसने सुना कि वो अलगू ने सुनाया है. उसके मन में ये बात आने लगी कि अलगू ने उसे धोखा दिया है. रामधन मिश्रा and the others were overjoyed and were all prizes फॉर अलगू. रामधन मिश्रा और वहाँ पे जो अन्य लोग थे वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अलगू को इस फैसले के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया. द इंसिडेंट स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स. ये जो घटना मतलब जो निर्णय उन्होंने लिया था, ये जो घटना उनके सामने आई, मतलब जो निर्णय अलगू ने लिया इसकी वजह से उन दोनों मित्रों की दोस्ती में दरार पड़ गई. They were now seldom seen together and in fact avoided each other. वो कभी भी एक साथ, उसके बाद वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दिए, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को क्या करते थे, नज़रअंदाज करने लगे. जुमान thought of nothing except how he could avenge this humiliation. जुमान और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था, वो केवल यही सोचता था कि कैसे वो इसका मतलब इसके साथ जो दुराचार हुआ है उसका बदला कैसे. He did not have to wait long. Soon enough an opportunity presented itself. उसे बहुत दिनों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई, ऐसा मौका उसे मिला कि वो अपने आप को उनके सामने रखना शुरू कर, मतलब उसने वो बदला लेना शुरू करने की कोशिश की. अलगू owned a pair of healthy bullocks but unfortunately one died. अलगू ने मतलब अच्छी उसके पास कहते हैं स्वस्थ भैंस, मतलब भैंसें जो होती है वो थी, बुलक्स थी उसके पास, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उनमें से एक खत्म हो गई. Having no use for the other bullock, he sold it to Samju Shah, a car driver who promised to pay the price after a month. लेकिन मतलब जो दूसरी बुलक उसके पास थी वो भी किसी काम की ना होने की वजह से उसने समझू शाहू को ये कार ड्राइवर जो था उन्हें बेच दी और उसने ये कहा था कि वो उसे 1 महीने बाद इसके पैसे देगा. शमजू हैज ए पेटी
trader who carted goods to one and fro between the village and the nearest टाउन। शमजू जो था वो एक पेटी ट्रेडर था। पेटी ट्रेडर मतलब एक ऐसा सेल्समैन जो ना तो खरीदता है ना ही बेचता है, मतलब एक सेल्समैन हु डिड नॉट बाय और सेल वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, यानी वो ना ही महंगी चीज़ें खरीदता है ना ही वो महंगी चीज़ें बेचता है, उसे हम पेटी ट्रेडर कहते हैं। मतलब गांव के लोगों में और जो पास की जो कस्बा था वहाँ पर वो इतनी महंगी चीज़ें ना तो खरीदता था ना ही बेचता था। द मोर ट्रिप्स ही मेड द मोर ही अर्नड, मतलब जिस तरीके से वो ट्रिप्स बनाता था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमाने भी लगा था। In his greed to make more, he made the bullock slog harder and harder. One fateful day, the overworked, under-rested bullock died. लेकिन ये जो कहते हैं ना एक लालचीपन आ जाता है, वैसे उसके मन में भी मतलब शाहू जो था, शमजू शाहू जो था, उसके मन में एक लालचीपन आया कि वो बुलक जो है उसके ऊपर एक स्लो, मतलब उससे बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करवाई, अधिक ज़्यादा मेहनत करवाने की वजह से वो बुलक जो था वो भी मर गया। ओके, जो बुलक था वो भी क्या हो गया, वो भी मतलब जो बुलक थी वो भी मर गई। ओके स्टूडेंट, सेवरल मंथ्स लेटर व्हेन अलगू आस्क्ड फॉर द प्राइस ऑफ द बुलक, all that Samju Shah was prepared to do was to offer Algu his own bullock on loan for 2 months। कुछ महीनों बाद जब अलगू ने उस बुलक के पैसे मांगे शमजू शाह से, तो उसने अपने आप को तैयार कर रखा था और उसे ये कहा कि तुम बुलक पर कुछ लोन ले लो, 1-2 महीने के लिए तुम ऑफर अलगू हिज ओन बुलक, उसके अपने ही बुलक के लिए उसे लोन लेने के लिए शमजू शाह ने उसे सलाह दी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। रीड द चैप्टर वंस and whatever work in the previous class meanings, word meanings I have given you, even read that. Have a nice day.